Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing great by the grace of God Almighty. Well, I'm Tufele Haji once again with you, and we are heart and soul attached right now, associated right now with ORCC program of Sky Classes. And I am hugely confident that this program is going to help you lots in acquiring the marks that you are aspiring for and the marks that will obviously help you have a great percentage in the examination and give you the boost and the confidence to make a glitzy and a glittering career ahead. Anyways, we have been doing so many things so far. तो आज की बात जो चलेगी वो कुछ राइटिंग स्किल्स पे चलेगी and this writing skill is a common writing skill program that's going to be for grade 10th, grade 11th, and grade 12th. I think all the grades have these writing skills, and I'm going to teach you crisply these writing skills today, and what all features do you need to keep in mind of those particular writing skills, and what are the formats of these writing skills. All these things will be discussed in today's session. And I'm very much confident that all of you are mentally motivated and thoroughly prepared for this session. And as usual, I keep telling you to have a notebook in front. Please do have a notebook and carry a pen or a pencil with you and get ready for today's session. तो आज की बात जो है वो कुछ राइटिंग स्किल्स पे चलेगी और वो राइटिंग स्किल्स हैं आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड पर्सनल नैरेटिव राइटिंग। इसके साथ साथ एक और राइटिंग स्किल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिबेट राइटिंग. सो all these four things will be discussed and to the point एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बातें जो है वो आपके साथ आज होंगी. उसके साथ साथ जो सैंपल्स हैं मैंने आपके लिए रखे हैं, दे ऑल्सो विल गो टू यू फॉर help and those samples will guide you to write very good articles, debates, what's called personal narratives and the speeches, whichever choice you opt for. रिमेंबर आपको ये चारों की चारों चीजें नहीं अलग अलग से पूछी जाएंगी. आपको इन चार चीजों में एक चीज जो है वो एग्जामिनेशन में लिखनी होगी और जब आप चारों चीजें प्रिपेयर करके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस रहेगा कि बेस्ट वाला जो कॉन्फिडेंट वाला जो आपके लिए राइटिंग स्किल होगा तो उसी राइटिंग स्किल को आप ऑब्वियसली ऑप्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए. तो आगे बढ़ते हैं and we'll get started with the article writing. So the first thing that you need to know about article writing is what is an article. आखिरकार ये आर्टिकल होता क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस. लेकिन पहली बात है व्हाट इज एन आर्टिकल. आर्टिकल जैसा आपको पता है इट्स ए रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन and that provides analysis, that provides perspective on a particular topic. एक ऐसा written piece जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें एक पर्सपेक्टिव होता है, एक ओपिनियन होता है, जिसमें एनालिसिस होती है, डेटा बेस्ड एनालिसिस होती है, फैक्चुअल एनालिसिस होती है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड. तो ये आर्टिकल्स जो हैं यू कैन फाइंड देम इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, you have articles on the magazines and journals also, you have articles in the form of editorials also, you have so many articles around which you find, but the question is that what and how a beautiful article looks like and what are the features of a good article. तो वही चीजें जो है आज डिस्कस करेंगे. तो पहला पॉइंट जो है जब आप आर्टिकल लिखेंगे वो होता कैसा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. पहली बात जो है an article is structured. So it means that आपका जो आर्टिकल है ये structured होना चाहिए. Structured का मतलब हो गया it has to be organized. It's a directional piece. It's not an unorganized piece. It's not an unstructured piece. आपको आर्टिकल को एक स्ट्रक्चर देना है, एक ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर में आपको अपने थॉट्स जो है वो लिखने हैं.
उस आर्टिकल में आपको अपने ओपिनियंस जो है, अपनी एनालिसिस जो है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको आगे बढ़ानी है. सो इट इज अ डायरेक्शनल पीस ऑफ राइटिंग एंड इट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस. Now, what is the purpose of writing an article? Obviously, as I told you, inform. आपको information देनी है readers को. Readers get a lot of information through an article. You are writing about a particular topic, and that particular topic you are writing with information, and this information obviously goes to your readers. So that is the first thing that you need to keep in mind about the article. It is informational, and at the same time it is having a direction, and it is a directional piece, it's information. It is also persuasive in nature. दैट मीन्स आर्टिकल्स में क्या होता है कि आप अपने ओपिनियन की मीन्स से, उसके जरिए से रीडर्स को किसी पॉइंट के लिए परसुएड करते हैं. परसुएड मीन्स मोटिवेट करते हैं. सपोज आप लिख रहे हैं आर्टिकल दैट द ब्यूटी ऑफ वैल्यूज, द ब्यूटी ऑफ ethics is slowly and steadily degrading and declining in our सेटअप, इन आवर सोशल सेटअप. हमारे जो वैल्यूज हैं उनका इरोजन हो रहा है. आप इसमें एक आर्टिकल लिखते हैं वैल्यू इरोजन पे, तो उसके बाद आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसे आप एनालिसिस देते हैं, ऐसा आप डेटा पेश करते हैं कि रीडर्स जो हैं वो मोटिवेट होते हैं ये चीज सुन के कि हाँ हमें इस राइटर के साथ अग्री करना चाहिए. बिकॉज वो कोई रीडर जो है अगर आर्ग्यू भी करना चाहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज से, अपने स्ट्रक्चर से, अपने डेटा से, अपनी एविडेंस बेस्ड डेटा से ऐसे परसुएट करते हैं कि वो आपका ओपिनियन लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपना ओपिनियन बदलने के लिए जो है वो मोटिवेट हो जाता है. सो आर्टिकल्स आर परसुएसिव इन नेचर ऑल्सो. There are so many things that you want readers to persuade, to convince about through an article. Or that is also one of the reasons that we write articles. And then obviously there are articles that will entertain the readers also. They are of humorous nature. There are articles of diverse natures, and those articles can obviously help you get entertainment as well. आपको अच्छा लगेगा उन articles को पढ़ना. In fact, they have a lot of fun, they have a lot of humor attached to them, and you'll enjoy reading those articles. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए भी, थोड़ा एंटरटेन होने के लिए भी, and therefore that touch is also present in articles. So the first point, it's a structured thing, it has got direction, it has got information, it has got persuasion, it has got entertainment for the readers, and it consists of several paragraphs. And article के कुछ paragraphs होते हैं. It has got a very specific beginning. एक अच्छा start article का होता है. एक attractive start होता है जब article start करेंगे. एक thought provoking start होता है. It has got a lovely middle and a meaningful conclusion. Middle part of the article has to be full of informative data, full of analytical data. And then obviously you have to make sure that you keep the reader engaged all through while he is reading your article. आपकी आर्टिकल में वो करिश्मा होना चाहिए, वो अट्रैक्शन होनी चाहिए कि रीडर जो है एक पल के लिए भी ना सोचे कि मुझे इस आर्टिकल को यहीं पे छोड़ लेना चाहिए. सो द रीडर शुड बी ड्रॉन एंड ड्रैग्ड टुवर्ड्स getting through the article and moving towards the end of the article. डिपेंड करेगा कि आपकी लिंग्विस्टिक ब्यूटी कैसी है, डिपेंड करेगा आपका ग्रामेटिकल सीक्वेंस कैसा है, डिपेंड करेगा आपके कितने फैक्चुअल थॉट्स आप पेश कर रहे हैं, डिपेंड करेगा कितना इंटरेस्टिंग डेटा आप उस आर्टिकल में लिख रहे हैं, डिपेंड करेगा आप कैसा उस आर्टिकल को एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड अंदाज में पेश करते हैं, सो दैट रीडर जो है वो एक पल के लिए भी ना सोचे कि मुझे इस आर्टिकल को यहीं पे छोड़ के कुछ और पढ़ लेना चाहिए. सो दैट इज द सेकंड पॉइंट. एंड नाउ वी मूव इनटू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, दैट इज द फॉर्मेट. और फॉर्मेट में क्या करेंगे, अब इसके मार्क्स होते हैं. जो टाइटल ऑफ द आर्टिकल होगा, हेडिंग जो होगी, ये नॉर्मली एक सिंगल वर्ड या फ्रेज होती है, 4 से 6 वर्ड्स तक ऊपर. सपोज कश्मीर द लॉस्ट पैराडाइज,
pollution eating into the vitals. So वैल्यू इरोजन अ कंसर्न। तो ऐसे ऐसे चीजें जो हैं, दो चार पांच वर्ड्स में हम आर्टिकल की हेडिंग लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर्स में नॉर्मली लिख लेते हैं, जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ भी रहते होंगे न्यूज़पेपर से। और उसके बाद उसकी नीचे होती है एक बायलाइन। बायलाइन में हम क्या लिखते हैं? वी राइट द नेम ऑफ द राइटर। आप आर्टिकल लिखते हैं और नीचे लिखते हैं बाय तुफैल हाजी, बाय योर नेम, जो भी नाम है आर्टिकल राइटर का वो लिख सकते हैं। याद रखें, आर्टिकल का नाम लास्ट में भी लिखा जा सकता है, बाय दिस दिस दिस। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल कॉमन प्रोसीजर है, टाइटल आपने ऊपर लिखा, उसके नीचे आप लिखते हैं उस राइटर का नाम। सो दैट इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। और जहां तक कंटेंट की बात है, कंटेंट में हम इंट्रोडक्शन में राइटर जो है वो प्रोवाइड करता है फैक्ट्स, और ही पोज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द थीम ऑफ द आर्टिकल। सपोज कश्मीर द लॉस्ट पैराडाइज, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते, इज कश्मीर द सेम कश्मीर as it was once upon a time when the Sufis and saints came to this place? Is Kashmir the same Kashmir that Kashmir was once upon a time when we had peace and tranquility in the region? So एक सवाल आप पोज कर रहे हैं to get to the mental schemas of the readers। आप कोशिश कर रहे हैं कि एक सवाल पोज किया जाए और उस सवाल में इतनी दिलचस्पी क्रिएट की जाए कि रीडर जो है वो थोड़ा सोच विचार पे मजबूर हो जाए और इस आर्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ने के एतबार से तैयार हो जाए, मेंटली मोटिवेट हो जाए। सो द इंट्रो, द राइटर कुड प्रोवाइड सम फैक्ट्स, या स्टार्ट से आप कुछ, डू यू नो दैट this has happened? Did you ever know that this is going to happen or this was going to happen? कुछ astonishing, astounding facts जो आप start में लिखेंगे, तो that's also going to obviously spark the curiosity of the readers. So the writer will, in the introduction, provide some facts and pose a question related to the overall theme of the article. And then when we talk of expression of the article, obviously expression matters। expression में आपकी vocabulary टेस्ट हो जाएगी, एक्सप्रेशन में आपका ग्रामर स्ट्रक्चर टेस्ट हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में आपकी जो कोहेरेंस है और रेलेवेंस ऑफ आइडियाज है, जो मैंने पैराग्राफ में भी बोल दिया है कि कोहेरेंस मींस इंटरकनेक्शन बिटवीन द आइडियाज। आपको आर्टिकल में कोई भी सेंटेंस आउट ऑफ जॉइंट नहीं जाना चाहिए। अगर आर्टिकल किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, तो आर्टिकल के तमाम लाइंस जो हैं, तमाम सेंटेंसेस जो हैं, वो उस टॉपिक सेंटेंस पे कन्वर्ज करने चाहिए। सो देयर मस्ट बी कोहेजन एंड कोहेरेंस in the article, there must be interconnection in the article pieces, and then obviously spelling आपकी करेक्ट होनी चाहिए, वर्डिंग जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो है इट इज फॉर the public, and therefore there will be so many people, so many veterans, experts reading your article, so they will not expect it to have mistakes। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, आर्टिकल को प्रूफ रीड करना है, लैंग्वेज को पार्लियामेंटेरियन रखना है, फॉर्मल रखना है, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं उसमें आप उतनी वर्बोस और कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी भी यूज नहीं कर सकते कि एक आम इंसान के लिए उस आर्टिकल को पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाए। तो आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल फॉर्मल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज इट्स फॉर द मैसेज, इट्स फॉर द पीपल, इट्स फॉर द कॉमन मैन। तो कॉमन मैन को आप पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज में कोई भी चीज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। So in the description of the topic, you have to highlight the causes, effects, advantages, disadvantages। You have to be a balanced article writer। आपको merits के साथ demerits, advantages के साथ, it should not look that you are particularly holding a point in a partial way। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल में आपकी जो है माइंड आपका जो है वो हर 360 डिग्री जो है घूमना चाहिए। आपको हर चीज के प्रोज और कॉन्स जो है वो बयान करने। यू हैव टू राइट अबाउट द मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेस, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, एवरीथिंग यू हैव टू, बिकॉज आपको आर्टिकल ऐसे लिखना है कि तमाम रीडर्स जो हैं वो ये समझें कि आपने एक होलिस्टिक व्यू पेश किया। उनको नहीं बू आनी चाहिए कि ये बंदा जो है ये बायस्ड है, ये पार्शल है, इसने अपना पर्टिकुलर व्यू जो है
पहुंचाने की कोशिश की है. नो, you have to make sure that you are clarifying everything from all the perspectives. That's why मैंने पहले कहा analysis, perspective, information. These are the three things that articles provide to readers. Good analysis, और जब आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं, इट मीन्स आप उस चीज के तमाम एरियाज और डोमेन्स और डिमेंशंस को टच करते हैं. अगर इंटरनेट है, ये ब्लेसिंग है, तो कैसे ब्लेसिंग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक ब्लेसिंग है, किन किन एतबार से ब्लेसिंग्स है? अगर इसके कुछ इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, इसकी वजह से कोई चीजें और नुकसान हो सकती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं? So you are presenting a holistic perspective of a thing. That's what we mean by good analysis, and that analysis should be based on data, should be based on facts, should be based on what's called the evidence. If you don't have evidence, if you don't have proof, then unfortunately readers will not take it. Readers will not be persuaded to take the view that you are trying to convey to them. So description has to be very good. You have to describe the topic very well. Describe is the word that you need to take care of, and then you have to highlight the causes and the consequences, the advantage and the disadvantage, and then in the ending, obviously, you can use your own suggestions, and then you can also what's called criticize, or you can give your opinions and views, and you can express in the conclusion a desire or a warning or an appeal. You have a choice to write your line also, but towards the end, what do you feel about it personally? And that is what you can write towards the end of the article. और इन आर्टिकल्स को लिखने के बाद जो है, रीडर एक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, रीडर को एक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जिससे उसका जहन जो है वो खुल जाए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और रीडर जो है, he starts feeling that yes, the amount of information that I have received through the article is sufficient and adequate for me to now create an opinion, and then these data pieces have helped me to change my thoughts, or these data pieces have strengthened my boosted my perspective about that particular topic. तो ये चीज जो है, ये आर्टिकल राइटिंग में हम करते हैं. उसके बाद हमारे पास एक सैंपल है. सपोज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनएजर्स. सोशल मीडिया बाय में आप लिखेंगे अपना नाम, ऊपर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन teenagers. Now see, social media platforms have become an integral part of modern life, especially for teenagers, bringing both opportunities and challenges. अब देखिए, पहली लाइन में जो है, राइटर सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट को ओपन अप कर देता है. सो व्हाट हैज इट डन? इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. सो ही डज नॉट स्टार्ट विद क्रिटिसिज्म कि पहले ही नहीं जी, सोशल मीडिया गलत है बच्चों के लिए, उसने तबाह कर दिया है बच्चों को. नो नो नो, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट. सो द स्टार्ट इज समथिंग which makes the reader to start realizing that किन किन एरियाज में ये इंटेग्रल पार्ट है, क्यों ये इंटेग्रल पार्ट है, एंड देन bringing both opportunities and challenges. अब देखिए, पहली लाइन में, आर्टिकल की पहली ही लाइन में, इसने इंसान के रीडर के जहन को एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है. दैट मीन्स you might be thinking that social media is only a ban, it's only what's called a curse, but no, it has its opportunities also. You might be thinking that social media is only having very good things, but it has its challenges also. So पहली ही लाइन में एक क्लियर पर्सपेक्टिव दिया है राइटर ने, आर्टिकल राइटर ने. So while they offer a way to connect, share information, this is what social media does. Connect भी करते हैं, information share करते हैं, update करते हैं हमें. Excessive use can lead to negative consequences like social comparison होता है, cyber bullying हो रही है, decline in face-to-face interactions. It's essential to strike a healthy balance to ensure social media remains a tool for connection rather than a source of distress. Unfortunately, it is turning out to be a source of distress. It is lesser turning out to be a tool of connection. Lekin we have to use it in such a way that it serves the purpose of connection. To navigate this digital landscape, teenagers should be encouraged to critically evaluate the content
that consume and remember that online personas are often curated. Parents and educators play a crucial role in promoting responsible usage, and open solutions also are there. Who are the ones who can help us curate this well? Who are the ones who can help us balance this social media well? That is the responsibility of the parents and the teachers, and they can help the students to open the communication channels about the pressures of social media. Encouraging offline hobbies activities can also help reduce dependence on digital platforms. And then, in conclusion, social media's impact on teenagers depends largely on how it is used. By fostering digital literacy, हमें ज़रूरत है digital literacy की, and children should be taught how to use electronic gadgets, and encouraging a balanced lifestyle. We can help young people harness the benefits of social media while mitigating its potential harms. जो इसके potential harms हैं, नुकसान है, उन नुकसानों से हम अपने यंग जनरेशन को बचा सकते हैं अगर उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाए, अगर उनको बैलेंस्ड व्यू दी जाए, अगर पेरेंट्स और टीचर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं। तो आप देखिए ऊपर से नीचे तक एक सैंपल में एक आइडिया भी है, हालात भी है, और उसके साथ साथ आपने एक अच्छा कंक्लूजन भी दिया। ये एक शॉर्ट आर्टिकल है, इट कैन बी इवन लेंथी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट दैट हाउ यू कैन स्टार्ट, what all you can, in fact middle part में अभी आप बहुत कुछ data भी भर सकते हैं कि what is the latest data, how many have suffered from mental health issues. Those things can be added there, and where are social media channels helping us connect, these things can be added in the middle part. But then I distribute into three parts only to tell you that these are the areas that you need to look into in introduction, in main body, and then in the conclusion. दूसरी चीज जो आपको एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, दैट इज राइटिंग ए स्पीच। ऑब्वियसली वंस अगेन स्पीच ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, स्पीच ऑल्सो एनालाइजेस थिंग्स, स्पीच ऑल्सो एंटरटेन्स। स्पीच के जरिए से भी आप परसुएड कर सकते हैं ऑडियंस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। लेकिन स्पीच जो होती है इट्स वर्बल, एंड यू आर डिलीवरिंग ए स्पीच, एंड देयरफॉर उस स्पीच को भी बनाने के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्टिव वेज ऑफ राइटिंग ए स्पीच, एंड इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज टू लार्ज ऑडियंस विद द पर्पस ऑफ यू हैव अ टारगेट ऑडियंस इन द स्पीच। आपके पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और आप अपनी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, एंड व्हाट इज द पर्पस, you try to spread awareness regarding social issues, or you want to give information about important issues। ये तो आपको पता है, कोई social concern है उस पर आप स्पीच दे रहे हैं, या कोई जनरल कंसर्न है, कोई जनरल टॉपिक है जिस पे आपको स्पीच देनी है। तो ऑब्वियसली वंस अगेन इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां पर भी आपको अपनी चीजें जो हैं, अपने सेंटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना है, और हम वो पढ़ेंगे। पहला इंट्रोडक्शन जो है उसमें आप ग्रीट करेंगे गेस्ट को। अभी मैं आपको सैंपल के जरिए से दिखाऊंगा। यू आर ग्रीटिंग द गेस्ट, यू आर ग्रीट, जैसे हम स्पीच जब स्टार्ट करते हैं तो डिस्टिंग्विश्ड चीफ गेस्ट ऑफ द डे मिस्टर डैश डैश डैश, revered guests of honor, teachers, ladies and gentlemen, students, everyone, a very good morning to all of you. It is my immense privilege and honor to stand in front of you to speak on an important issue today, and that issue has been eating into the vitals of our society. Yes, dear friends, my topic for today is dash dash dash. Dear friends, you must be knowing that this topic has been widely discussed, and then you start moving on and on with emotion, with action, with gestures, with eye contact, and then आपको पता है कि जो mercury of emotion है speech में ये बढ़ता जाता है। And what are the things that you need to see in the introduction? You are greeting the guests, you are greeting the audience, you are announcing the topic. It's an interesting start. आप एक शेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। You can use a couplet, you can use a verse, you can use a stanza, you can use a story, an anecdote, you can start with a historical reference। सबसे पहले I want to take you to a historical fact। तो ये चीज जो है जब स्टार्ट ऐसे आप करते हैं स्पीच को, तो ऑब्वियसली द audience, they get very much entangled, and they get very much absorbed towards, engrossed
towards what you are trying to communicate. And then you are exposing the topic, you are building up sequence of ideas. आप ideas को लाते हैं, evidences को लाते हैं, examples को लाते हैं अपनी speech में, right choice of words का use करते हैं, you are drawing up arguments for or against the topic. कुछ arguments for होते हैं, कुछ against होते हैं, और आप दोनों चीजों को बैलेंस करके पेश करते हैं. और उसके बाद वर्बल पिक्चर्स, पर्सनलाइज, ड्रामेटाइज, आप बड़े वर्बली अपने टोन को मैनिपुलेट करते हैं, आप ड्रामेटिक अंदाज से चीजों को बोलते हैं, आप अपना इंटोनेशन जो है, राइज एंड फॉल ऑफ स्पीच, उसका ख्याल रखते हैं. एंड देन यू आर यूजिंग सच वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर वेरी वेरी ड्रामेटिक इन नेचर, जिससे जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा एंथ्यूज हो जाती है. एंड देन यू समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विदाउट रेपिटेशंस, आप रेपिटेशन अवॉइड करते हैं. एंड देन यू कंक्लूड विद अ कॉल ऑफ एक्शन. लास्ट पार्ट जो आपका स्पीच का होता है उसमें आप कॉल ऑफ एक्शन देते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर नाउ, अब हमें करना क्या है. मोबाइल फोन्स की ऐसे पॉजिटिव्स हैं, मोबाइल फोन्स के ऐसे नेगेटिव्स हैं, लेकिन अब क्या करना है. मोबाइल फोन्स ने ज्यादा जो है गंद मचाई हुई है, लेकिन व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द कॉल फॉर एक्शन. एफॉरेस्टेशन जो है कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रही है. अल्टीमेटली व्हाट्स द कॉल फॉर एक्शन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ. एंड यू आर गोइंग टू डू एन अपील. आप एक वार्निंग सिग्नल दे सकते हैं कंक्लूजन में, आप एक अपील कर सकते हैं जनरल, आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप दैट इज हाउ you are concluding, and then you express your thank you for being a wonderful audience. I hope that I have completely put forward my point, and I am very sure that whatever points have been spoken, I'm very sure that you have got convinced about the arguments, and the call for action is now that we all need to stand up and rise against this issue, and then show that we can overcome it. So last वाली line जो होनी चाहिए आपके, ये बड़े डायनामिक होने चाहिए. एंड फॉर्मेट जो है इसका, वंस अगेन टाइटल ऑफ द स्पीच, और उसके बाद एक दो वर्ड्स में एप्ट अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, और उसके बाद कंटेंट एंड एक्सप्रेशन जो आपका है वो देखने को मिलेगा. नीचे जो स्पीच की बाकी जो बाकी हिस्से होंगे उसमें आपका कंटेंट. ऑब्वियसली वंस अगेन यू आर राइटिंग द स्पीच. आप ये स्पीच बोल नहीं रहे, आप ये लिख रहे हैं, लेकिन लिखना ऐसे है जैसे आप ये बोल रहे हैं. सो जो टोन होना चाहिए आपकी लिखाई का वो ऐसा होना चाहिए कि आप इसको लिख रहे हैं, लेकिन लिख ऐसे रहे हैं कि जैसे आप इसको लिख नहीं रहे, जैसे आपको बोल रहे हैं. सो उस बोलने वाली टोन को आपको ट्रांसलेट करना है लिखने वाली टोन में. एंड दैट इज व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अ गुड स्पीच. और जब हम स्पीच की बात करेंगे यहाँ पे इसका जो ये है, वी ट्राई टू, no, it's not getting, no, it's not getting wider. Anyways, I'll read this for you. And speech writing sample हमारे पास यहाँ पे है. The topic is the power of youth in shaping the future. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students, today I stand before you to talk about a powerful force that can shape the future of our world. That force is the youth. मैं इस स्पीच को ऐसे पढ़ रहा हूं, ऐसे मैंने लिखी है जैसे मुझे ये लिखनी नहीं थी बल्कि पढ़नी थी, सुनानी थी, डिलीवर करनी थी. उसी टोन से मैं पढ़ रहा हूं. तभी आप देखो चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students, today I stand before you to talk about a powerful force that can shape the future of our world. That force is the youth. As young individuals, we often underestimate our potential to bring about change. However, history has shown us time and again that youth have the power to transform societies, challenge unjust systems, and create a better future. In the words of Ralph Waldo Emerson, not gold, but only men can make a people great and strong. The youth of today are not just the leaders of tomorrow, they are the leaders of today. We have the energy, the passion, the curiosity, the creativity to make a difference. We can harness this power to address pressing issues like the climate change, social responsibility, social inequality, and access to education.
As students, we have the unique opportunity to learn, grow, and develop our skills. We can use our knowledge to inspire others, to challenge the status quo, and to bring about a positive change. We can volunteer, participate in community service, engage in activism, and make our voices heard. The future is not something that just happens to us, dear audience. It is something that we can create. As young people, we have the power to shape our own destiny and the destiny of our world. Let us harness conclusion. Let us यानी कि आप एक अपील कर रहे हैं, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक जिल्ला बख्श रहे हैं, आप एक बूस्ट दे रहे हैं, आप एक तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं. Let us harness this power. Let us use our voices and actions. Let us use our creativity to create a brighter, more just and more peaceful world. तो लास्ट की लाइन जो है आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी. सो जो लास्ट वाला कंक्लूजन होगा आपका ये एक पॉजिटिव नोट पे एंड होना चाहिए. You should not have pessimism. You should, yes, you can at least at times you can sound a warning also. If we stop nurturing the earth, the time has come we start nurturing the earth. If we stop nurturing the earth, this earth will stop nurturing us. The choice is ours. Do we let our environment ship lose its nuts, or we start plugging its holes and save it from destruction? The end of the speech, my dear friends, has to be very, very positive, has to be very appealing, very engrossing. It should make the audience think. और जब आप साइन ऑफ कर जाओ निकले तमाम ऑडियंस जो है खड़े होके ताली बजाने चाहिए कि नहीं जो बातें बोली गई दमदार बातें थी, रेलेवेंट बातें थी, एविडेंस बेस्ड बातें थी, वर्ड चॉइस बहुत ही अच्छी थी, जेस्चर्स अच्छे थे, आई कांटेक्ट बहुत जबरदस्त था और जो लैंग्वेज यूज की गई थी that was very much appropriate for a speech. There is one more piece that you might be asked to write, dear friends, that is a debate. अब once again मैं आपको बताना चाहूंगा कि debate भी हम normally verbal form में देखते हैं. So when you talk of a debate, obviously you are talking of for and against. So you have a preposition, you have a topic, and you can speak for that topic and you can speak against that topic. Suppose, is AI a threat to creativity? Now you can say yes, you'll speak for the motion, yes, it is a threat to creativity, and you'll speak against the motion and say no, it's not a threat to creativity. Debate is all about argumentation. आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग, जो लोग आप में से डिबेट्स देखे हैं या जो लोग आप में से डिबेट्स किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि यू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट एंड उसके बाद एक रिबटल होता है जहां पे आपको सवाल पूछे जाते हैं और आपके अगेंस्ट जो है ओपोनेंट जो है वो आप ही की बात को जुटलाना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है और आप अपनी बात को स्ट्रांगली पेश करना चाहते हैं थ्रू अ रिबटल. सो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के लिए डिबेट राइटिंग में जो चीज देखनी है वो है कि यू हैव टू सी व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर द मोशन एंड व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट द मोशन. आपको खुद ही फॉर में भी जाना है और आपको खुद ही अगेंस्ट में भी जाना है. दैट मीन्स आप जब डिबेट लिखेंगे तो आपको उस वक्त दोनों चीजों पे, दोनों पर्सपेक्टिव्स पे नजर होनी चाहिए. सो डिबेट इज अ कॉन्टेस्ट दैट इज बिटवीन टू स्पीकर्स and it's between two groups of speakers, and what do? They show their skills and abilities in an argument or a topic. So two groups or two people or two sides, they oppose each other and they present their arguments and a persuasive manner of speaking with the aim of converting the view of another person of the audience to your own point of view. आप ऐसे डिबेट करते हैं कि जो आपके ऑपोजिट बंदा है, जो वो व्यू रख रहा है, आप अपने आर्गुमेंट को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं कि वो बंदा पर्सुएड हो जाए, मोटिवेट हो जाए अपनी व्यू छोड़ने पे और आपकी व्यू लेने के लिए. सो दैट इज व्हाट वी सी इन दिस. अ स्पीकर ईदर स्पीक्स इन फेवर ऑफ द मोशन, जो मैं आपको बता रहा था, और ही स्पीक्स अगेंस्ट द मोशन. एंड गुड इंट्रोडक्शन is there to grab the audience attention. When you write a debate, you introduce your debate well first, and then you make your stand clear right from the beginning. Start से ही आप अपना stand clear करते हैं. Yes, artificial intelligence is a threat to creativity, and similarly
you have strong arguments with relevant facts, examples. Once again, यहाँ पे फैक्ट्स और एविडेंस की सबसे ज्यादा अहमियत रहेगी, क्योंकि आप एक व्यू को टेकअप कर रहे हैं और उस व्यू को तभी ओपोनेंट और बाकी ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, आपका पॉइंट तभी स्ट्रांग माना जाएगा जब आपके पास एविडेंस डेटा हो, आपके पास प्रूफ हो, आपके पास फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, स्टैटिस्टिकल डेटा हो, एंड देन रेलेवेंट फैक्ट्स, एग्जांपल्स, एम्फैटिक स्टेटमेंट और कंक्लूजन। फॉर्मल एड्रेस टू द चीफ गेस्ट, एमिनेंट पीपल। ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं डिबेट को लिखना तो आप पहले चीफ गेस्ट को एड्रेस करेंगे, मोस्ट डिग्निफाइड जजेस, most dignified chief guest of the day, dear ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Today, I have the opportunity to present a very important topic, and then the point of view that I'm holding on this day through this debate is, and then you are going with your argument, you are going with your point, you are going with your proposition, and obviously the content and the expression will matter. And then ultimately, once you finish the debate, then you have to have what's called a formal thank you. Now, what do you see in a debate? Should social media be banned for the people under 18? This is the debate that you have a word limit of 250 to 300 words, and for the motion, again is the motion. ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है. Are you writing both for as well as opposite, or are you writing only for? And then in today's digital age, social media, this for the motion. For the motion means yes, social media should be banned for people under 18. In today's digital age, social media has become an integral part of our lives. However, I strongly believe that social media should be banned for people under 18. अब आपने पॉइंट रख लिया कि ये बैन होना चाहिए, उसके बाद आपको एविडेंस देना है क्यों. फर्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन्ड टू बी एडिक्टिव. इसमें एडिक्शन है. Excessive usage can lead to mental health issues like anxiety, depression, low self-esteem among teenagers. Secondly, social media can be a breeding ground for cyberbullying, harassment, and online predators, which can have severe consequences for young minds. Moreover, social media can distract students from their studies and lead to a decline in academic performance. आप इस वक्त सोशल मीडिया बैन होना चाहिए उसके फेवर में बात करें. यू आर स्पीकिंग फॉर द मोशन, एंड बैनिंग सोशल मीडिया फॉर पीपल अंडर 18 can help protect them from these negative effects and promote a healthier lifestyle. Instead of spending hours scrolling through social media, young people को outdoor games खेलनी चाहिए, read books करने चाहिए, pursue their hobbies. This can help them develop their skills. Better meaningful relationships can be formed, become more productive members of society. ये बातें जो हैं ये speech for the motion है. That means social media should be banned for children, people under 18. Now again is the motion. While I understand the concerns about social media, I strongly disagree with the idea of banning it for people under 18. Social media has numerous benefits. अब obviously जो इसके खिलाफ जाएगा, against जाएगा, वो तो benefits बताएगा ज़्यादा. Social media has numerous benefits, including connecting with friends, family, accessing information. हमें मिलती है information. We develop digital skills. In today's digital world, social media is an essential tool for young people to stay connected, learn, and grow. Social media is a great tool if you want to stay connected to friends, if you want to stay connected with the family members, if you want to learn. The social media is there. You have ChatGPT, you have got so many resources available online that can help you learn better and grow better. Moreover, banning social media is not a practical solution as it can lead to more harm than good. Young people can find ways to access social media through VPNs or other means. अगर आपने उनको बैन नहीं कर दिया तो वो मुख्तलिफ रूट्स इख्तियार करके कुछ गलत तरीकों से सोशल मीडिया एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. Instead of banning social media, we should educate young people about responsible social media usage, online safety, digital citizenship. हमें बतानी चाहिए, समझानी चाहिए उनको. This can help them navigate the online world safely and effectively. तो ये है against the motion. So दोनों चीजों को जो है आपको जहन में रखना है. For the motion, against the motion, and see the balance of language that you need to use. आपने देखा लैंग्वेज का बैलेंस जो है
वो मैटर करता है। लैंग्वेज आपकी जो होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक ब्यूटी मैटर्स अ लॉट. You have to make sure that the right word structures, sentence structures are put in place, right punctuation marks are put in place, और जो टोन ऑफ द लैंग्वेज आपका है दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी गुड. मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा कि यू मे हैव टू गो थ्रू अ फ्यू डिबेट्स. नो, व्हेन आई से फ्यू डिबेट्स आई मीन से आपको कुछ स्क्रिप्ट्स, डिबेट स्क्रिप्ट्स जो है वो देखने चाहिए. खासकर आज के जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ लेना चाहिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. उसके बाद एक और चीज है जो लास्ट चीज है इन राइटिंग स्किल्स में, जिसमें आपको एक चीज आ सकती है, दैट्स पर्सनल नैरेटिव. और पर्सनल नैरेटिव में क्या होता है कि ऑब्वियसली नैरेटिव जो होता है इट्स अ स्टोरी और अकाउंट ऑफ इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस ऑफन टोल्ड इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. आप किसी पर्सनल इवेंट को, किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को जो है वो लिख रहे हैं और इसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टाइल होता है. इट कैन बी, this narrative can be in the form of a fiction, it can be in the form of a novel or a non-fiction, and it can take many forms: short story, memoir, personal essays, diaries, novels. You can write personal narratives in a different form, and these personal narratives are basically types of narratives that focus on the writer's personal experiences. तभी इनको नाम पड़ा पर्सनल नैरेटिव्स. पर्सनल एक्सपीरियंस ये कंप्लीटली पर्सनल होता है. यू हैव टू यूज द फर्स्ट पर्सन हियर, आई, वी, अस. इनसे जो है आपको काम चलाना होगा बिकॉज इट्स कंप्लीटली पर्सनल टू यू. एंड थॉट्स आपकी क्या है, फीलिंग्स क्या है. इट्स अ रिफ्लेक्टिव एंड ऑफन इंट्रोस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट, एक्सपीरियंस. आपके साथ कोई इवेंट हुआ या कोई एक्सपीरियंस लाइफ में हुई है तो उसकी जो थॉट प्रोसेस आपने बनाई है, जो आइडियाज आपने कलेक्ट किए हैं पर्सनल लेवल पे, या जो इंट्रोस्पेक्टिव अकाउंट आपका है, यानी कि आपने जो खुद सोचा है, अपने मन में डूब के आपने थोड़ा सोचा है, खोजने की कोशिश की है कि मुझे इस एक्सपीरियंस से क्या फीलिंग्स मिली, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस कितनी अच्छी या बुरी साबित हुई. तो उस पर्सनल अकाउंट को आप लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव, and that is what we say it's a personal narrative. And then what are the features? पहली बात, it is having a first person perspective. फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव मतलब आपको आई, अस, वी का काम लेना है, आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का यूज करना है. एंड पर्सनल नैरेटिव्स आर टिपिकली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन यूजिंग प्रोनाउंस आई एंड मी. ये पहला पॉइंट. और उसके बाद दे आर रिफ्लेक्टिव इन नेचर, they are introspective in nature. Reflective means what makes you think on the personal level, what makes you introspect. अपने आप के साथ आप कभी सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं. कोई भी हैपनिंग आपके साथ जो लाइफ में होती है उसके बाद आप खुद उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, सोच विचार करते हैं, अपने व्यूज के साथ अपने आप जो है एनालिसिस करते हैं. आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं होता, आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि गौर से सोचते हैं, अपने मन में डूब के सोचते हैं कि आखिरकार ये चीज मेरे लिए कितनी कारआमद या कितनी नुकसानदेह साबित हो रही है. सो इट्स इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड they obviously talk about your thoughts, your feelings about a particular thing, or insights about your experiences. और तीसरी बात है, वंस अगेन इमोशनल पर्सनल होता है. ये पर्सनल नैरेटिव्स ऑफ इन्वॉल्व पर्सनल स्ट्रगल्स. आप अपनी स्ट्रगल के बारे में लिख रहे हैं, द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू एंड द ट्रायम्फ्स. क्या सक्सेसेस आपकी हैं, क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रही है, जिंदगी आपको कौन से रंग दिखा रही है, आप जिंदगी के साथ कैसे लड़ रहे हैं, कैसे आप चीजों का मुकाबला कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी जीत हो रही है, कहाँ कहाँ आप मन से हार रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको दिमाग जो है वो स्ट्रेस में अपने आप को दिखाई दे रहा है. एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी इमोशनली चार्ज्ड. सो पर्सनल नैरेटिव जब लिखते हैं यू हैव टू पुट इन a lot of emotions. So when we talk of personal writings, you have some storytelling techniques also. आप जब कोई पर्सनल चीज लिखते हैं तो आप उसको बयान करते हैं, आप पिक्चराइजेशन करते हैं, आप थोड़ा एक कहानी के रूप में इसको बयान करते हैं. कभी कभी आप इनडायरेक्टली अपनी कहानी बयान करते हैं. सो पर्सनल नैरेटिव्स ऑफ्टन यूज लिटरेरी डिवाइसेस लाइक डायलॉग्स का यूज आप कर सकते हैं, आप इमेजरीज का यूज, इमेजरीज आपने पढ़ी होंगी. You have visual imageries, you have auditory imageries, you have what's called
tactile imagery, you have olfactory imagery. Some imageries have, when the writer pictures images in the mind, like you have got something that has got a connect with the eyes, we call it visual imagery. You have got something which has got a connect with the ears, with the hearing, we call it auditory imagery. You have got some connection with what's called the smell, we call it olfactory. You have got some connection with the taste, that's called gustatory. So you have got imagery, tactile imagery, that's the imagery that has got a connection with the touch. And then obviously you are using descriptives, यानी कि आप सेंसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को एक डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके साथ स्टोरी जो है वो कंपेलिंग बन जाती है, वो इंटरेस्टिंग बन जाती है आपकी। और ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्वियसली पर्सनल नैरेटिव्स आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन द राइटर्स ओन लाइफ, तभी तो इसका नाम पर्सनल पड़ा, ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। और थीम्स और मैसेज जो होती हैं पर्सनल नैरेटिव्स ऑफ्टन कन्वे थीम्स और मैसेजेस लाइफ के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। और ऑब्वियसली इट्स सब्जेक्ट टू एंड पर्सनल वॉइस, पर्सनल नैरेटिव्स आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम द राइटर्स यूनिक पर्सपेक्टिव। और जो आप लिखते हैं उसमें आपका यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, आपका पर्सपेक्टिव, ये आपकी बात है, ये आपकी व्यू है, ये आपकी एक्सपीरियंस है, ये आपकी सक्सेस है, ये आपकी स्ट्रगल है, ये आपकी ट्रायम्फ है, ये आपके चैलेंजेस हैं, ये आप है, आई एम मी। ये पर्सनल नैरेटिव जो है इट्स कनेक्टेड विद योर ओन सेल्फ। सो वट एवर यू फील, मे बी पीपल अग्री विद दैट और नॉट, that is not the problem. Here you have to write about the autobiographical accounts that you are actually wishing to write. Format जो है एक जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहला पार्ट है जिसको आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें आप हुक करते हैं। हुक करने का मतलब यू आर ग्रैबिंग द रीडर्स अटेंशन, आप अटेंशन लेते हैं रीडर्स का। इंटरेस्टिंग कोई कोट से स्टार्ट किया आपने, कोई छोटी कहानी बनाई, कोई एनेक्डोट बनाया, कोई क्वेश्चन दे दिया आपने लाइफ के बारे में, और उस स्टोरी का लिंक जो आगे होगा वो जरूर आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ होगा। सो बैकग्राउंड देना है थोड़ा, यू कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी। थीसिस स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, क्लियरली स्टेट द पर्पस, मेन पॉइंट। उसके बाद बॉडी जो आपकी होगी उसमें पर्सनल नैरेटिव में इवेंट और एक्सपीरियंस क्या है, आपके साथ क्या हुआ, वो पर्सनल इवेंट क्या था, वो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या आपने देखी इन डिटेल यूजिंग विविड लैंग्वेज एंड सेंसरी डिटेल्स। और उसके बाद रिफ्लेक्शन एनालिसिस, रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट experience, explore its significance, impact, and lessons learned. Emotional connection, share your emotions and thoughts about the experience. Conclusion में आप क्या करेंगे, you will summarize the main points and reflections. और उसके बाद मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज, जो एक सैंपल जो मेरे सामने है, जो आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं, स्क्रीन आपके सामने है। तो एक सैंपल है पर्सनल नैरेटिव का, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसे लिखना है। टाइटल क्या है, द डे आई कॉन्कर्ड माई फेयर। वो दिन जब मैंने अपने फियर को कॉन्कर किया, यानी कि मैंने अपने फियर पे फतह पाई। एक डर था मुझे और मैंने इस डर को ओवरकम कर दिया। आप देखिए इस पे एक पर्सनल नैरेटिव लिखा गया, इट वॉज अ ब्राइट समर मॉर्निंग। आप देखें स्टार्ट कैसे होता है। पहले मैंने आपको बोला कि आपको एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट देना है। इट वॉज अ ब्राइट समर मॉर्निंग, द काइंड दैट प्रॉमिस्ड एडवेंचर्स। एक ऐसी मॉर्निंग मुझे देखने को मिली जिस मॉर्निंग ने मुझे मन ही मन में बताया कि आज कुछ एडवेंचरस होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। आप देखिए मंजर कशी कैसे, स्टार्ट कैसे किया है। इट वाज अ ब्राइट मॉर्निंग। टॉपिक क्या है, जिस दिन मैंने अपने फियर को कॉन्कर कर दिया। स्टार्ट क्या है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। आप देखें स्टार्ट कैसे अट्रैक्टिव है, प्लेजेंट स्टार्ट है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। और ये वो मॉर्निंग थी, वो समर मॉर्निंग थी जिस दिन मुझे लगता था कि कुछ एडवेंचर्स होने वाला है। अब एडवेंचर मीन्स समथिंग एक्साइटिंग, कुछ। अब देखिए इस वर्ड से आपको पता चला होगा कि आगे के लिए जो होना है इसका लिंक इस वर्ड के साथ जरूर है। So it was that kind of a morning where something beautiful was going to happen, something exciting was going to happen, something extraordinary was going to happen. So the kind that promised adventures. My heart pounded as I stood at the edge of the high diving board. मैं डाइविंग बोर्ड पे हूं और मेरा दिल जो है वो धक धक कर रहा है, वो पाउंड कर रहा है। आपको पता होना चाहिए जब दिल पाउंड करे, कभी खुदा न खास्ता जब जलजला होता है तो उसके बाद दिल जो है वो पाउंड करते हैं। पाउंड मीन्स इट्स, लगता है कि जैसे कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है, वैसे दिल को ऐसे होता है, धप धप होता है। और जब आप किसी फियरफुल एक्सपीरियंस
को लेते हैं तो उसके बाद भी दिल का यही हाल होता है। माई हार्ट पाउंडेड, मैं एक डाइविंग बोर्ड पे हूँ, नीचे पानी पूल है, उसके बाद मुझे उसमें छलांग मारनी है, लेकिन मुझे डर है, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। और आई स्टूड एट द एज ऑफ द हाई डाइविंग बोर्ड। अब स्टोरी ये देखो, टेलिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या है। एंड peering into the deep blue pool below, मैं देख रहा हूं, मेरी नजरें जमी हैं उस पूल ऑफ वाटर पे। नीचे मैं हाइट पे हूं और नीचे पूल ऑफ वाटर है, मुझे जंप करना है। आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अगोराफोबिया, दैट्स कॉल्ड फियर ऑफ हाइट्स। तो मुझे हाइट से बड़ा डर लगता था। आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। एंड हियर आई वॉज फेसिंग, अब देखो आई रिपीट हो रहा है, पर्सनल प्रोनाउंस। Here I was facing my bright biggest fear. The diving board felt like a plank leading to the unknown. मुझे लगता था ये डाइविंग बोर्ड नहीं है, ये एक ऐसा प्लैंक ऑफ वुड है जो पता नहीं मुझे कहां ले जाएगा। हो सकता है मैं मौत के मुंह में धकेला जाऊं। आप देखो पहले ही पैराग्राफ में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना जो है ऑथर अपने फियर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और उसके बाद राइटर जो है वो कैसे बयान कर रहा है कि मेरे दिल का हाल उस वक्त क्या है, मेरा फियर क्या है। और उसके बाद ये भी एक्सप्लेन करता है कि मेरा फियर क्या है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि आई हैव होप, ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्या पता आगे इसकी अनसर्टेनिटी मुझे कहां ले जाएगी, विल आई बी एबल टू कॉन्कर दिस फियर और नॉट। और उसके बाद अब जरूर जब रीडर्स इतना पढ़ेंगे तो उनको जरूर मन होगा कि नहीं हम आगे देखेंगे आखिरकार इसने क्या किया, डिड ही ओवरकम दिस फियर और नॉट। उसके बाद क्या इसने छलांग मारी भी कि नहीं, क्या ये वापस चला गया। सो द डाइविंग बोर्ड फेल्ट लाइक a plank. अब देखो, fell like a plank leading to the unknown. This is called a language that is a very descriptive language. जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं इन a very compelling way, interesting way, ये ऐसे ही बोल सकता कि the diving board was very much risky for me, लेकिन felt like a plank taking me to the unknown, ये एक सिमिली यूज करता है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इस डाइविंग बोर्ड से छलांग मार के मैं किस दुनिया में चला जाऊंगा, हालांकि नीचे पानी था। Below, my friends cheered. Their voices a blend of excitement, encouragement. यहाँ से मेरे दोस्त जो है वो cheering कर रहे थे, clapping कर रहे थे. They were encouraging me. और उनकी voices जो था blend of excitement and encouragement. उनमें उन आवाजों में excitement भी था, उन आवाजों में encouragement भी था. I closed my eyes, took a deep breath and recalled my dad's words. मैंने एक deep breath लिया और उस वक्त मुझे अपने डैड के वर्ड्स याद आए। और उसने क्या मुझे बोला, ये वही वर्ड्स हैं जो क्लास 10th में अपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला के वर्ड्स हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज का मतलब नहीं है कि आप में फियर नहीं है, करेज का मतलब नहीं है कि आप में फियर नहीं है, करेज का मतलब है आप में फियर है लेकिन आप उस फियर को कॉन्कर करते हैं, आप उस फियर पे फतह पा लेते हो, आप उस फियर को डिफीट कर लेते हो। सो ये वाले लफ्ज जो हैं ये मेरे दिमाग में चल रहे थे, मुझे याद आ रहा था अपने डैड के वर्ड्स, और वो वर्ड्स जो है मुझे अंदर ही अंदर एक नई एनर्जी, एक नया पैशन, एक नया करिश्मा क्रिएट कर रहे थे। एंड देन द ट्रायम्फ ओवर इट, विद दैट थॉट आई लीप्ड, और इसी सोच को लेके मैंने छलांग मारी। द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, द विंड रश्ड पास्ट मी एज आई प्लमेटेड, आई the world a blur of sky and water। और उसके बाद क्या हुआ, विंड के बीच, तेज हवाओं के बीच, I fell into the water and the world a blur of sky and water। मुझे सिर्फ स्काई और वाटर, आसमान और पानी दिख रहा था और कुछ नहीं। and then with a splash I was submerged in the cool embrace of the pool। splash, उसके बाद जब आपने पता होगा जब छलांग मारते हैं तो उसके बाद पानी आवाज करता है, उस स्प्लैश के साथ आई वेंट इनटू द पूल, कूल एम्ब्रेस ऑफ द पूल। कूल एम्ब्रेस, एम्ब्रेस बोलते हैं गले लगने को। और जब मेरा जो है टच हुआ पानी के साथ, ऑब्वियसली मुझे लगा जैसे इस पानी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। कूल एम्ब्रेस ऑफ द कूल ऑफ द पूल, सरफेसिंग I heard the triumphant cheers of my friends. In that moment, I realized I had done more than just dive. I had overcome a barrier within myself. मेरे लिए एक डाइव नहीं था, बल्कि मुझे लगा कि मैंने एक बैरियर आज, जो हाइट्स का एक फोबिया मुझे था, वो मैंने आज कवर कर लिया, मैंने उस पर फतह पा ली।
और अंदर ही अंदर मुझे एक पर्सनल ट्राइफ हासिल हो रही थी, मुझे एक पर्सनल सक्सेस लग रही थी। दैट डे आई लर्नड दैट फेसिंग योर फियर। अब देखो कंक्लूजन क्या है, मैसेज, कंक्लूजन मैसेज है। उस दिन मैंने क्या सीखा कि अपने फियर्स को फेस करना, नो मैटर हाउ डॉन्टिंग, इज अ जर्नी वर्थ टेकिंग। कितना भी मुश्किल हो फियर्स को ओवरकम करने की जर्नी, लेकिन इस जर्नी को इंसान को लेना चाहिए। हर एक बच्चे में इस वक्त फियर्स होंगे, लेकिन याद रखो करेज का मतलब है उन फियर्स पे फतह पाना, उन चीजों को, उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एक्शन सेल्फ, बट द सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड सेल्फ डिस्कवरी दैट कम्स विद इट। ना सिर्फ आपको इस एक्शन से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, बल्कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर भी करते हो। आपको पता चलता है कि नहीं, मुझ में कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं, मुझ में कुछ ऐसे पोटेंशियल हैं जो अभी अनडिस्कवर्ड है, जो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूं, और मैंने कर लिया। एंड दिस एक्सपीरियंस taught me that the courage was always a part of me waiting to be awakened। और इस छोटे से एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि मेरे पास हिम्मत है, लेकिन इस हिम्मत के दिए को जलाने की कोशिश करनी थी। जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो मैंने आज कर दिया। आज मैंने इस हिम्मत के दिए को, इस हिम्मत की शम्मा को जला दिया, और आज ये रोशन हो गई। और आज मेरी हिम्मत ने मुझे उस फियर से निजात दिलाई, जो फियर मन ही मन में मुझे परेशान कर रहा था। आप देखिए, यहां से यहां तक हमने एक छोटा सा पर्सनल नैरेटिव देखा, और इसमें कितना इमोशन देखा, इसमें कितना एनकरेजमेंट देखा, इसमें कितना पैशन देखा, और इसमें जो लिंग्विस्टिक ब्यूटी है, हर वर्ड के साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ पर्सनल नैरेटिव माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ पर्सनल नैरेटिव्स पढ़ने पड़ेंगे। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे वो है कि लैंग्वेज की ब्यूटी जो इसमें है, सर क्या हम ऐसे वर्ड्स हासिल कर सकते हैं? हम कैसे? ऑब्वियसली आप जरूर कर सकते हैं, जब आप ऐसे पर्सनल नैरेटिव्स को पढ़ने की थोड़ी आदत डालेंगे। यू हैव टू स्टार्ट reading about personal narratives, so inshallah it's not that thing which is impossible. It is very much possible. Remember, impossible itself says I am possible। इन चार चीजों में एक चीज जो है एग्जाम में आपको लिखे जाने को बोला जा सकता है, चारों चीजें प्रिपेयर करके जाइए, 6 मार्क्स जो है आपके बन जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम we'll have something more, and that something more also is going to be very interesting and absorbing। I hope that you had a fair idea of how these things are to be written। सैम्पल्स जो है, पीडीएफ जो है, मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। और आज ही मैं आईटी डिपार्टमेंट को वो इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो भी हमने राइटिंग स्किल्स फिलहाल तक पढ़े हैं, उनके सैम्पल्स जो है आप तक पहुंचाए जाए इन टर्न्स। Inshallah, I'm very much hopeful that you'll be getting a lot of benefit from this ORCC program from Sky Classes। वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं फिर से बताऊंगा, वीडियोस जो है वो पढ़ लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, और जितना आप उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, बार बार भी अगर आप देखेंगे दैट्स बेटर। और जॉट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम पैटर्न पॉइंट जो है मैं आपको बोलता रहता हूं, तो उन चीजों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह रिविजन विल हेल्प यू अ लॉट, एंड maintaining your self, also conducting yourself as I often tell you, अपने टाइम टेबल को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए। नमाज के लिए, कुरान के लिए अच्छी तरह से जो है अपने होली स्क्रिप्चर को अच्छे से पढ़िए, एक एक पेज हर रोज एटलीस्ट। उससे जो है दिल और दिमाग जो है अल्लाह ताला ठीक रखते हैं। और उसके साथ साथ ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द फोन्स एज मच एज पॉसिबल, except for whenever you require to watch a video या कोई लेसन आ रहा है तो उस वक्त। अदरवाइज ट्राई टू, बिकॉज एट टाइम्स यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑल्सो, ये भी एक परेशानी बन सकती है आपके लिए। और जो चीज़ें आप वीडियो से ले रहे हैं उनको फिर थोड़ा थोड़ा अगर आप लिखते भी जाए उन पॉइंट्स को, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो इंशाल्लाह I'm very much hopeful that you are getting the benefit that you actually deserve and desire। And in the next few lectures also we'll cover the few writing skills that are left, and also now we'll go to the poetry part and the prose part, and inshallah then I'll discuss the paper pattern also with you, and important questions also जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर कुछ गेस वर्क, कुछ सेंटेंस, कुछ क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम पैटर्न है, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट वीक we'll wind up
the ORC program for English. And in the next week itself, you'll have all the lessons and what's called all the expected questions also with you. But कोशिश करें हर चीज़ पढ़ के जाए, क्योंकि guess is ultimately a guess. We need to prepare for everything and hope for the best, inshallah, but prepare for the worst. Thank you. Have a great time ahead. Have a sweet Sunday. All the best. Take care. Islam.